Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So in the last video, we have gone through the types of the CSS. Now in this video, we will discuss about the one of the dependency that we will use for our code formatting. The second one is what is DOM, and the third one is we will discuss about the style, which type of style we need to follow, and many more things we will discuss in the style. So let's first download the dependency that we need to for our code formatting. So you need to write here is prettier. So as you can see, this is the first one. You can install it, and I'm opening one of the file. Let's assume I'm opening this file. So when I click on format document, so I think it is still installing. So it has been installed. So let's go our file and let's click on the format document with. Now with which you can format. I want to format with the prettier. So as you can see, this has been styled in a very very formative way. So this is the dependency you can download, because if you do not download and if you simply use the default one, then it will be show something like this. But when you choose the prettier, then it will format your code in a very much better way. So download the prettier. This is the one thing. And the second, what is DOM? Maybe I have already told you, but I am not sure. So in this video we will learn about what is DOM. DOM is a simply logical structure of your web page and the way document is accessed and manipulated. So if I will show you the example of what is DOM, so DOM is this one. So मैंने क्या बोला, DOM is a logical structure that represents your web page. होता क्या है कि whenever HTML file is loaded, तो JavaScript cannot understand the HTML file. So corresponding a document is created. We called it as a data object model, DOM. DOM is basically the representation of the same HTML file in a different format with the use of object. What is object we will learn later in the JavaScript course, but right now we are on the CSS, so do not worry about it. So JavaScript interpreter interprets DOM easily. JavaScript cannot understand the tag. JavaScript cannot understand the h1 tag, h2 tag, p tag in HTML document, but can understand object h1 in DOM. Now JavaScript can access each of the object by using different function. So the simple मतलब इतना है कि जब भी हम लोग का HTML फाइल लोड होती है तो हम लोग का करस्पॉन्डिंग DOM क्रिएट होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML फाइल को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है, उसके अंदर जितने भी टैग वगैरह लिखे हैं वो उनको नहीं पढ़ पाता है। तो इसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वी कॉल्ड इट एज अ डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, और जावास्क्रिप्ट उन सारी चीज़ों को, जितने भी h1 टैग है, जितने भी है, उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है और उन सबको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर आपने कोई स्टाइल दी है तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उस स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप उसके बैकग्राउंड को, अगर आपने विद द हेल्प ऑफ CSS आपने रेड किया हुआ है तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप उसको ब्लू कर सकते हो, आप उसकी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, आप उसे फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, मैनी मोर थिंग्स आप कर सकते हो। सो DOM इज सिंपली अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज. Now the third thing is we will discuss about the inline, internal and external. As we have gone in the last video, inline, we add the style in the same line, in the same tag, but it is not good practice because we cannot add a style with all the tag. Okay, so it will create a lot of headache for the programmer to see what type of style he need to change and what type of style has been added in the paragraph tag or in any of the element. So it's not so it is not a easy way to change or to format our or to manipulate our CSS. So inline में क्या है, inline में आपने कोई, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई बटन दी हुई है
बटन और आपने उस बटन को यहाँ पे स्टाइल दी हुई है। अब आपके ऐसे 5-6 पेज है, मान लीजिए अबाउट पेज है, देन यू हैव अ कॉन्टेक्ट अस पेज, तो उसमें आपके बटन है और वो बटन 3-4 जगह पे है। पहले पेज पे अबाउट अस पेज में 3 बटन्स हैं, कॉन्टेक्ट अस में भी 3 बटन्स हैं और आपके प्रोडक्ट्स पेज में भी 3 बटन्स हैं और वो सारी बटन सेम कलर की है और सेम स्टाइल की है। तो आपने हर प्रोडक्ट पेज से रिलेटेड आपका एक पेज बना हुआ है, आपका एक पेज अबाउट अस से बना हुआ है, आपका एक पेज कॉन्टैक्ट से बना हुआ है। तो आपने 3 पेज बनाए हुए हैं और क्या आप तीनों पेजेस में बटन के लिए सेम स्टाइल लिखेंगे? आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप इनलाइन का यूज़ कर रहे हो। तो आप लोगों को 3 पेज में आपको सेम स्टाइल देनी पड़ रही है। बट इट इज़ नॉट गुड बिकॉज़ हम लोग की बटन सेम है। तो हम लोग क्या प्रेफ़र करेंगे कि हम लोग एक कोड को लिखें और वो कोड को हम हर फ़ाइल में यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि हम एक फ़ाइल को यहाँ पे क्रिएट करें और इस फ़ाइल को हम लिंक कर दें with all 3 files, about us, contact us and the product page. So ये भी ये सही है, ये इनलाइन से अच्छी है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोड बहुत ही क्लियर है। हमारा HTML पार्ट अलग है, CSS पार्ट अलग है, लेकिन अगर आप सारी स्टाइल इस पेज में ही दोगे तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा और लोडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ओके, सो उस HTML कोड में आपने यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा HTML होगी कि आप इसको स्क्रॉल करते ही रह जाओगे। ओके, तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या करो कि यहाँ से पूरा निकालो और उसको एक फाइल में लिखो ताकि आपका जो भी कोड है HTML का वो बिल्कुल क्लियर रहे और आप यहाँ पे जो भी चीज़ मैनिपुलेट करना चाहते हो, जो भी कंटेंट मैनिपुलेट करना चाहते हो वो आप अच्छे से कर पाओ और CSS सारा एक फाइल में रहेगा। आप जाके CSS को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी है कि जो इनलाइन होता है वो फास्ट होता है, जो इंटरनल होता है वो उससे थोड़ा सा स्लो होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो हल्का सा और स्लो होता है बिकॉज क्योंकि फाइल को सबसे पहले तो फाइल लिंक होती है तो लिंकिंग टाइम भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपका कोड बेस बड़ा होता है तो हमारा सबसे बेस्ट वे ये है कि हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करें क्योंकि लिंक तो केवल एक बार फाइल से होगा, उसमें कुछ ही नैनो सेकेंड और यू कैन से द पिको सेकेंड और उससे भी कम समय लगेगा। लेकिन आपका कोड स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा और आपका जो रिपीटिशन ऑफ कोड है वो बहुत कम होगा। मतलब आपने अगर एक बटन के लिए कोड लिखा तो आप उसे सारी फाइल में यूज़ कर पा रहे हो। तो आप देखो कि आप लोगों ने एक कोड लिखा हुआ है, आप उसे 20 पेजों में आप सेम कोड को डिलीवर कर रहे हो विदाउट राइटिंग एनी मच कोड। तो ये कितना फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है कि आप एक्सटर्नल CSS को यूज़ करो। इससे आपका लोडिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाता है, इससे आपकी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो इनलाइन और एक्सटर्नल का यूज़ बहुत ही कम करें, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहीं करिए। बाकी एक्सटर्नल का आप यूज़ अच्छे से कर सकते हो, ये आपका वेबसाइट को बहुत ही फास्ट बनाता है। अगर कोड बहुत स्मॉल है जैसे पोर्टफोलियो, तो आप उसमें इनलाइन के बगैर एक बार यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे बड़ी-बड़ी वेबसाइट गूगल, अमेज़न, लिंक्डइन, अगर आप ऐसी वेबसाइट को बनाने जाओगे तो आपको एक्सटर्नल का यूज़ करना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सर्च बार है, तो सर्च बार का जो स्टाइल है वो अलग-अलग पेजेस पे आप लोगों को मिल जाएगा और वो सेम सर्च बार होता है। कभी उसका विड्थ छोटी होती है, कभी हाइट थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसका कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज़ एवरीथिंग वाज़ सेम। तो आप उसके लिए आपको एक कॉमन कोड चाहिए, तो आप उसको एक्सटर्नल CSS में लिख लो और उसे हर फाइल में इम्पोर्ट कर लो जहाँ भी आपको वैसी स्टाइल चाहिए। ओके, नाउ आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ हम और देखते हैं, अगर प्रीव्यू पे जाएँ और आप देखो ये तो स्टाइल चलो इनलाइन से है, लेकिन ये जो है ये एक्सटर्नल से आ रही है। मान लीजिए कि हमने अब इसको ये किया और यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। ओके, अब देखो आप ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको कोई कलर दे दें, हमने मान लिया हम इसको ब्लैक देना चाहते हैं, तो आप सोचो कि इन दोनों में से प्रेफरेंस किसकी लेगा? क्या ये वाली स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये वाली स्टाइल अप्लाई होगा? चलो देख लेते हैं। अरे हमने क्या रेड, आप देख रहे हो कि इनलाइन की प्रेफरेंस ज़्यादा है देन इंटरनल, क्योंकि इसने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसको यहीं पे इसकी स्टाइल भी मिल गई, तो ये यहाँ पे जाएगा भी, देखेगा भी, लेकिन इग्नोर कर देगा बिकॉज ऑलरेडी ही हैज़ सम स्टाइल और हमारा कोड इतना स्मार्ट है हमारा ब्राउज़र कि वो कहेगा भाई तुमको जब स्टाइल मिल गई है तो तुम्हें क्यों ही करना है, तुम्हें बार बार क्यों स्टाइल को अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई नहीं करने देगा और वो अप्लाई भी नहीं होगा। ओके, अब यही चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ और मैं एक्सटर्नल पे अप्लाई कर दूँ एक्सटर्नल, तब भी आप देखो तभी कुछ नहीं चेंज होगा। तब भी इनलाइन की प्रेफरेंस ज़्यादा है देन
इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इनलाइन की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल में किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। ये भी हमारा है, इसको चला हटा देते हैं, इसका कोई काम का नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं रेड। ओके, अब आप देख लो अब इंटरनल और एक्सटर्नल में किसकी ज़्यादा है, इंटरनल की। क्यों? क्योंकि इसने इस कोड को रन किया, इस यहाँ पे जाएगा, देखेगा स्टाइल है क्या H1 से रिलेटेड, हाँ है। जब इसको इसी फाइल में मिल रहा है तो ये दूसरी फाइल से जो स्टाइल मिलेगा उसको इग्नोर करेगा। तो इन अ सिंपल लाइन, अगर उसको सेम लाइन में स्टाइल मिल रहा है तो वो बाकी स्टाइल को इग्नोर कर देगा। अगर सेम लाइन उसे नहीं मिल रहा है, अगर उसे सेम फाइल में मिल रहा है, HTML फाइल में अगर उसे मिल रहा है स्टाइल, तो वो एक्सटर्नल को इग्नोर कर देगा। अगर ये दोनों ही नहीं मिलते हैं तब जाके ये एक्सटर्नल फाइल को लेगा और वहाँ की स्टाइल को अप्लाई करेगा। आई होप यू आर क्लियर। First we have downloaded the prettier, then we have understood the DOM. DOM is simple, the logical structure of your web page. And the third, inline, internal and external. External is the best one which makes your website efficient. I hope this is clear, guys. Please like, subscribe and comment if you are new to this channel. I will meet in the next video with the next video.